cheerful good morning to all of you. Welcome to the English class. So today we are going to start a new chapter of English grammar, that is chapter number 10. The name of this chapter is conjunction. So student, first of all you have to know about the conjunctions. Yes, what is a conjunction? Yes, conjunction is a word which is used to join words or sentences together. Conjunction एक word होते हैं जो क्या काम करते हैं, दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं. यस, इट इज यूज टू जॉइन वर्ड्स. ये किसी का काम करते हैं, वर्ड्स को जॉइन करने का काम करते हैं. एज फॉर ए कंजक्शन, एज ए एग्जांपल, एज ए बिकॉज, बट, although, therefore, and, or. Okay student, so these are the conjunctions. Okay, so students, look into the example. Yes, Tom is jumping and Mary is skipping. So student, here we use and as a conjunction. Okay, so and conjunction किसके लिए यूज आता है, और के लिए. जब भी हम कोई भी दो वर्ड्स, दो सेंटेंस को हम जोड़ते हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे एज अ एंड कंजक्शन. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, मैरी कैन नॉट गो टू स्कूल टुडे बिकॉज शी इज इल. मैरी आज स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि वह बीमार है. Okay students, so here because is here as a conjunction. So here student you notice and because. जो and और जो because है वो दो sentence को, दो words को जोड़ने का काम करता है. So student, in this chapter we will study about the different types of conjunctions. Okay, let's start. Here the first use of conjunction and. Okay, the conjunction and is used to join words and sentences that have related or similar ideas. Okay, जो conjunction and है वो कहाँ पर यूज करते हैं, जब भी हम किसी दो वर्ड को जोड़ने के लिए, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज करते हैं, लेकिन डेट हैड रिलेटेड और सिमिलर आइडिया, कि उनका जो आइडिया है, उनका जो कहने का जो तात्पर्य है, जो कहना चाहते हैं, वो क्या होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए और सिमिलर होना चाहिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट पीपल वर्क इन अ डे एंड स्लीप एट नाइट. ओके स्टूडेंट, जो बहुत से जो लोग हैं वो दिन में काम करते हैं और रात को सोते हैं. ओके, here we use and conjunctions because it's related a sentence. Okay, most people work in a day, full stop, next sentence, most people sleep at night. So here we use as a conjunction and to make a one sentence. Yes, most people work in a day and sleep at night. Clear? Now next conjunction is here but. The conjunction but is used to suggest or contrast. देखिए जो but conjunction है वो किसके लिए यूज करते हैं, कोई सजेशन के लिए, कोई भी कंट्रास्ट मीन्स विरोधाभास आता है किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो हम यूज करते हैं but, जिसको हम बोलते हैं लेकिन, परंतु. ओके, फॉर एग्जाम्पल, he is poor but honest. वह पुअर है, वह गरीब है. here we use but conjunction. okay, but honest, लेकिन वह क्या है, ईमानदार है. here we use as a contrast in this sentence. We don't use and conjunction in this sentence. He is poor and honest, no. Okay, so here we use but. So here you know very well that but conjunction is used for contrast. contrast को हम हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास. Clear? Now, next conjunction is or. The conjunction or is used to join words and sentences in order to show choice. Okay, जो conjunction or है वो किसके लिए use करते हैं, join words. Yes, you know very well. Here we use as a conjunction to join words and sentences. Yes, it is used. Yes, it is used to order to show choice. जब भी हमारे सामने कोई choice होती है. Okay, so here we use or conjunctions. For example, student, you can write your paper with a pencil or a pen. You तुम अपने जो पेपर है उस पे तुम अपने पेंसिल से लिख सकते हो या पेन से. सो हियर गिविंग यू अ चॉइस, यहाँ पर क्या मिल रही है, हमको चॉइस मिल रही है. तो हियर वी यूज और कंजक्शन. एंड गिविंग यू अनदर एग्जांपल, वुड यू लाइक केक और बिस्कुट. तुमको क्या पसंद है, केक या बिस्कुट विद योर कॉफी. ओके, सो हियर वी यूज और कंजक्शन. तो जब भी हम कोई दो चीज के बारे में हम बात करते हैं, उसके बारे में पेंसिल और पेन, हियर वी डोंट यूज एंड कंजक्शन. ओके, तो आपको पता है कि उसके अंदर हमको और कंजक्शन के अंदर को हमको क्या पता चल रही है, चॉइस पता चल रही है, इसलिए हम यूज करते हैं और कंजक्शन. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज एल्स. वी यूज एल्स टू से व्हाट द रिजल्ट विल बी. ओके,
what the result will be if something does not happen. अगर कोई भी चीज नहीं होती, happen नहीं होती, घटित नहीं होती, the result will be, तो result क्या होगा? तो here we use L conjunction. So देखिए example के through समझते हैं. Complete your work else I will get you out of the class. अब देखिए complete करिए अपना work. Okay, here we use L conjunction. एल्स को जब भी हम बात करते हैं, ये किसकी बात करते हैं? परिणाम की बात करते हैं. वर्क अपना कंप्लीट कर लीजिए. आई विल गेट यू आउट ऑफ द क्लास, नहीं तो मैं तुमको क्लास से बाहर निकाल दूंगी. सो हियर इन दिस सेंटेंस वी यूज एल कंजक्शंस. एल्स हियर इफ द कंजक्शन ऑफ द प्रीवियस क्लॉज इज फॉल्स. ओके, कई बार हम एल्स कंजक्शंस का और भी कहीं यूजेस है, कहीं पे और भी वो डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर स्टूडेंट की. जैसे अभी कोई कंडीशन है, जो प्रीवियस कंडीशन है क्लॉज की, वो क्या होती है? रॉन्ग होती है, तो हम यूज कर लेते हैं एल्स कंजक्शन. और इसके अंदर हमने क्या किया? द रिजल्ट विल बी, रिजल्ट क्या होगा? इफ समथिंग डज नॉट हैपन. अगर इसके अंदर एग्जांपल के थ्रू हमने देखा कि अगर तुम अपना वर्क कंप्लीट नहीं करोगे, ये चीज अगर आपकी नहीं हुई, ओके, कंप्लीट योर वर्क. अगर तुम्हारा वर्क कंप्लीट करो, अपना वर्क कंप्लीट करो, नहीं तो मैं तुमको क्लास से बाहर निकाल दूंगी. तो सो हियर वी यूज एज अ एल्स कंजक्शंस. क्लियर? इफ समथिंग डज नॉट हैपन. क्लियर? नाउ otherwise. So next conjunction is here otherwise. Yes, we use otherwise to express a kind of conditional relationship. देखिए जब हम बात करते हैं otherwise की, तो हम इसको बोलते हैं नहीं तो. हिंदी में बोलेंगे नहीं तो. हम बात करते हैं कंडीशनल रिलेशनशिप की, बात करते हैं स्पेसिफिकली की, बात करते हैं बैड थिंग विल हैपन. जो भी चीज कुछ हो रही है या होएगी, बैड थिंग विल हैपन, जो चीज होएगी. अनलेस समथिंग एल्स हैपन, या तो वो चीज क्या हो रही है? अनलेस, मतलब बात चल रहे हैं कि अनलेस को बोलते हैं जब तक थिंग एल्स हैपन, ये चीज होगी, तो उसके लिए हम अदरवाइज कंजक्शन यूज करते हैं. यस, yes, otherwise the conjunction also used for stating what would happen if you do not do something or something does not happen. Okay, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. यस, ब्रश योर टीथ अदरवाइज यू माइट गेट कैविटीज. ब्रश करिए, अपने टीथ है जो आप उस पे ब्रश करिए, नहीं तो, या अन्यथा हम हिंदी में मीन्स निकालते हैं इसका, यू माइट गेट कैविटीज. तो तुम्हारी क्या हो सकती है? कैविटी हो सकती है. तो हम ये बात कर रहे हैं कि अ बैड थिंग विल हैपन. कोई भी चीज क्या हो सकती है? ठीक है, कोई भी चीज क्या हो सकती है? बैड थिंग हो सकती है. अगर आपने ब्रश नहीं किया तो बैड थिंग क्या हैपन हो सकती है? तुम्हारी जो टीथ है उसमें क्या हो सकती है? कैविटी हो सकती है. ओके, सो हियर अनलेस समथिंग एल्स हैपन. ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव टू क्लियर द कंजक्शन अदरवाइज. नाउ नेक्स्ट कंजक्शन इज ऑल्दो और दो. द वर्ड्स ऑल्दो एंड दो आर ऑल यूज्ड टू शो कंट्रास्ट. देखिए जो भी वर्ड्स एज ए कंजक्शंस है, ऑल्दो और दो, वो किसके लिए यूज करते हैं? शो कंट्रास्ट के लिए. कंट्रास्ट मीन्स विरोधाभास के लिए शो करते हैं. लेकिन although is generally considered more formal than though. although जब हम सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि जो सेंटेंस हमको देखेंगे कि जो ज्यादा फॉर्मल है, वहां पर हम although यूज करेंगे than though. ओके, क्लियर? लेट्स लुक इनटू एग्जांपल स्टूडेंट. फर्स्ट, although she loves her job she decided to quit the job. हालांकि वो अपनी जॉब से बहुत प्यार करती है. she decided to quit the job, तो उसने जॉब है उसको क्विट करने का क्या कर लिया? डिसीजन कर लिया था. Okay, so here we use as a second form of the verb decided. Okay student, in the first sentence we use as a present indefinite, she loves her job. Okay, now second sentence, he could not pass. ओके, दो ही टायर्ड ऑफन. वो पास नहीं हो सकता, हालांकि वो अक्सर, मतलब बात करते हैं हालांकि. दो का मीन्स भी क्या? हालांकि. ही टायर्ड ऑफन, वो अक्सर क्या? थक जाता था. हियर वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब टायर्ड, वो अक्सर थक जाता था. तो ही कुड नॉट पास, वो पास नहीं हो सका, हालांकि वो पास नहीं हो सका. सो हियर वी यूज ऑल दो कंजक्शंस. क्लियर? नाउ नेक्स्ट कंजक्शन is here. You know very well as we use or conjunction, because किसके लिए यूज करते हैं हम? because क्योंकि के लिए यूज करते हैं, है ना? जैसे he went home early because he was not feeling well. Okay, so student, I hope you have to understood the conjunctions. Okay, so now let's start the exercise of this chapter. Underline the conjunctions in the following sentences. Number 1, is that boy fat or thin? अब हम बात करें, हमको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कंजक्शंस को. यस, इन दिस सेंटेंस
tense. Is that boy fat or thin? Here underline the student, or is here as a conjunction. Number second, though rich he is not happy. So here underline the student, though मतलब हालांकि वो rich है लेकिन he is not happy, वो खुश नहीं है. Number third, Bimla is clever but idle. तो Bimla क्या है? Clever है, but he is here as we use conjunction. Okay, so Bimla is clever, वो क्या है? चतुर है, but idle, लेकिन वो क्या है? Idle को हम बोलते हैं inactive, बेकार. Okay. Number four, 2 and 2 make 4. So here we use and conjunction. Okay. Number fifth, he is poor but honest. So here but is here as a conjunction. So yes, student, underline this. Number six, Ashok as well as Raman has failed. So here we use as well as is here as a conjunction. So underline this. So student, yes, Ashok as well as Raman has failed. तो अशोक के साथ साथ जो रमन है वो भी फेल हो गया. Number seven, work hard if you want to pass. So here student, the if is here as a conjunctions. Okay, work hard, कठिन परिश्रम करो, work hard करो if you want to pass, अगर तुम पास होना चाहते हो. Number eight, he did not work hard therefore he failed. उसने work hard, कड़ी मेहनत नहीं की, हालांकि he failed, वो क्या हो गया? फेल हो गया. Number nine, do it because it is your duty. कर इसे करो क्योंकि ये तुम्हारी ड्यूटी है. Don't go unless you are called. Don't go. ओके, अनलेस, जब तक, अनलेस क्या हम हिंदी में मीन्स निकालते हैं, जब तक आपको बुलाया ना जाता, डोंट गो, आपको नहीं जाना. Clear? So children, I hope you have to clear the exercise number 1. Now let's start the exercise number 2. Fill in the blanks in the following sentences with suitable conjunctions from the book. Some words may be used more than once. Okay, so देखिए इधर help box is given here and also the conjunctions are also given here. Okay, so let's start. Number 1 sentence, wait for me dash I return. So here student we use as a till conjunctions. Why? Wait for me, मेरा wait करो, यहाँ पे मतलब मेरा इंतजार करो. till का मतलब हम यूज करते हैं जब तक I return में, जब तक यहाँ वापस नहीं आ जाता. Okay. Number second, you will fail dash you do not work hard. You will fail, तुम fail हो जाओगे अगर तुमने you do not work hard, अगर तुमने work hard नहीं किया तो तुम क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे. Here we use if conjunction. Okay. Number third, he missed the train although he ran fast. He missed the train. Yes, missed is here as a past tense here we use. Okay, so उसने ट्रेन मिस कर दी, हालांकि, although को हम यूज करते हैं हिंदी में हालांकि, he ran fast, वो क्या हुआ? तेज भागा. Number 4, dash he is poor he is happy. So here we use as a दो conjunction. हालांकि वो poor है और he is happy, वो खुश है. वो क्या है? खुश है, हालांकि वो पुअर है. तो देखिए समटाइम्स क्या होता है, वी यूज एज ए कंट्रास्ट के लिए हम, मैंने आपको बताया था, दो और ऑल दो कंजक्शंस यूज करते हैं, लेकिन फॉर्मल के लिए हम ऑल दो यूज करते हैं और वैसे हम क्या करते हैं? दो कंजक्शन यूज करते हैं. अब देखिए कंट्रास्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, दो ही इज पुअर, वो पुअर है लेकिन ही इज हैप्पी. पुअर के साथ क्या है? वो खुश है. लेकिन कई बार हम देखते हैं कई लोग पुअर होते हैं, वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, मैं पुअर हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है. लेकिन यहाँ पर कंट्रास्ट इज हियर है as yes he is happy, वह क्या है? खुश है. Okay. Number 5, he did not work hard. उसने work hard नहीं किया. Did not here, yes, notice student, this is a present indefinite tense we use here, did not. Now therefore he failed, तो क्या हो गया? वो fail हो गया. Here we use as a failed, second form of the verb. Okay, therefore he failed. Number 6, I did not go to school because I was unwell. So here you notice student, I did not go to school, मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि I was unwell. तो मैं क्या था? well नहीं था. unwell हो गया उसका अपोजिट unwell. मैं क्या था? बीमार था, मैं सही नहीं था. ओके. नंबर 7, she is poor yet cheerful. वो पुअर है, पुअर है फिर भी क्या है? हेयर येट का मीन्स क्या निकालते हैं? फिर भी, वो क्या है? चीयरफुल है. क्लियर? नंबर 8, आई कॉल्ड डैश नो वन आंसर्ड. आई कॉल्ड, ओके, मैंने पुकारा, बट परंतु नो वन आंसर, किसी ने आंसर नहीं दिया. नंबर 9, ही फेल्ड ऑल्दो ही वर्कड हार्ड. वो फेल हो गया हालांकि उसने बहुत मेहनत करी थी, कठिन परिश्रम किया था, लेकिन फिर भी वो, हालांकि वो क्या हो गया? फेल हो गया. नंबर 10, कैच मी इफ यू कैन. कैच मी मतलब मुझे क्या कह रहे हैं ये? कैच मी इफ यू कैन, मुझे पकड़ो अगर तुम पकड़ सकते हो. सो हियर वी यूज इफ कंजक्शन. ओके, सो नाउ स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर. यस, चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस गिवन. नंबर 1, आई वाज लेट. Okay, dash I did not miss the bus. So here we the
So able conjunction is there. I was late but I did not miss the bus. मैं क्या था, देर था, लेकिन फिर भी या परंतु I did not miss the bus, मैंने बस मिस नहीं की. Okay, now next sentence. Jasmine was tired dash she went to bed early. So Jasmine क्या थी, बहुत थकी हुई थी. So here we use as a was and ed third form of the was as a. जब भी हम use करते हैं तो हमारा जो active से passive बनाते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं was tired, वो थकी हुई थी. So इसलिए she went to bed early, तो वो बेड पर जल्दी चली गई. Went is here second form of the verb, students. Okay, now number third. You have to keep on trying dash you succeed. तो you have to keep on trying, तुमको ये करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए till you succeed. जब हम टिल की बात कर रहे हैं कि जब तक तुम सक्सीड, तुम सफल नहीं होते. नंबर 4. आई वॉन्ट टू गो टू बोथ द बर्ड पार्क एंड डैश द जू. मैं कहा जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ बोथ द बर्ड पार्क, मतलब बर्ड जो पार्क है वहां पर जाना चाहता हूँ, और जू में, देखिए दोनों जगह जाना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम यूज करेंगे एज अ एंड कंजंक्शन. नंबर 5. यू कैन गो इधर टू द जू और द बर्ड पार्क. तुम कहाँ पे जाना चाहते हो, इधर मतलब आप यहाँ तो चिड़ियाघर या फिर आप जो बर्ड पार्क में जा सकते हैं. तो हियर वी यूज एज अ, हम चॉइस की बात करते हैं तो हियर वी यूज और कंजंक्शन. नंबर 6. वी वेंट होम अर्ली बिकॉज ही वॉज नॉट फीलिंग वेल. हम घर जल्दी चले गए क्योंकि ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था. हियर वी यूज बिकॉज कंजंक्शन. Number 7. My mother will wear the blue Banaras silk or the Kanjivaram sari to the party. देखिए इसके अंदर जब चॉइस आ रही है या तो ये या तो वो, so we use और कंजक्शन की बात करते हैं कि जो मेरी जो मदर है वो पार्टी में पहनेगी या तो ब्लू मतलब नीले कलर की बनारस सिल्क पहनेगी या कांजीवरम की साड़ी पहनेगी. Okay, here we use or conjunction. Okay students, I hope you have to clear the exercise number 3. Now let's start the exercise number 4. Join the sentences by using or because. So here you notice that we use as a or conjunction to show our choice, and because we use as a, क्योंकि वो काम नहीं हुआ किस लिए, उसके लिए हम यूज करते हैं because conjunction. Okay, हमारे सामने दो सेंटेंस दे रखे हैं और हमको क्या करना है, दो सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाना है. We on the use of conjunction. कंजक्शन का यूज करके हम इसको एक ही सेंटेंस बनाएंगे. So student, let's start. She must work, she will fail. She must work or she will fail. Or here we use as a or conjunction. उसको must work काम करना चाहिए और she will fail, नहीं तो क्या हो जाएगी, fail हो जाएगी. Number 2. She cannot drink this coffee, it is too hot. Okay, she cannot drink this coffee because it is too hot, क्योंकि वह बहुत गर्म है. Okay. Number 3. He failed in the examination. Next sentence, he did not work hard. Yes student, he failed in the examination because he did not work hard, क्योंकि उसने कठिन मेहनत नहीं की. Okay. Now number 4. Sit still, you will fall from the stool. मतलब क्या हो जाओगे तुम स्टूल से. sit still मतलब तुम की बात चल रही है, सीधे बैठो, नहीं तो तुम स्टूल से गिर जाओगे. Yes, sit still or you will you will fall from the stool, नहीं तो तुम स्टूल से क्या हो जाओगे, गिर जाओगे. तो here we use as a or conjunction to make up one sentence. Number 5. He could not win the prize, he did not work hard. Yes student, here we use he did not win the prize because he did not work hard. Okay, here we use because conjunction. Why? Because he could not win the prize, वो प्राइज को नहीं जीत सकता क्योंकि उसने कठिन मेहनत नहीं की. Okay, here we use did not. Yes, past indefinite tense. Okay, so here we use did form. Now number 6. Now here the sentence, is Mary your sister, is she your cousin. तो दोनों ही बात चल रही है, तो हम बात कर रहे हैं कि तुम्हारी सिस्टर जो है या तुम्हारी कजन है, तो हम अल्टरनेट की मतलब चॉइस की बात चलती है. दूसरे में पूछ रहे हैं कि सिस्टर है या कजन, तो here we use or conjunction. Yes, is Mary your sister or cousin. Okay, make up one sentence. Clear? Number 7. We could not play the match, it was raining. Okay, we could not play the match because it was raining. हम मैच नहीं खेल सके क्योंकि raining बारिश हो रही थी. Okay, here we use because conjunction. Okay students, so I hope you have to clear all the conjunctions. So student, in this exercise the two sentences are given, so you make a one sentence to use a conjunction. Okay student, so I hope you have to understood this chapter conjunctions. Okay, read it 2-3 times or do in your notebook. Okay student.